Hello friends, last lecture we have discussed Arrhenius acid-base theory. Today we will discuss next points, that is limitation of the Arrhenius acid-base theory. इस theory के आपको क्या देखना है? Limitation देखना है. First of all, give the heading limitation of Arrhenius acid-base theory. Limitation of Arrhenius acid-base theory. This theory, acid and base is only explained in aqueous solution, does not explain in the substance themselves. क्या है? This theory, acid and base is only explained in aqueous solution, does not explain in the substance themselves. Second one is it does not explain the acidic nature of HCl and basic nature of the NH3 in non-aqueous media या gaseous state. It does not explain the acidic nature of the HCl and basic nature of the NH3 in non-aqueous media या gaseous state में वो क्या नहीं कर सकता है? Explain नहीं कर सकता है. Third one is it does not explain the acidic nature of the salts such as AlCl3, BeCl2 because in there does not contain the H plus ion. It does not explain the acidic nature of the certain salt like AlCl3, BeCl2 because in there does not contain the H plus ion, and basic nature of the certain salts like Na2CO3 and potassium cyanide because in there does not contain the OH माइनस, जिसमें जिस सॉल्ट में H प्लस एंड जिस सॉल्ट में OH माइनस नहीं है वो क्या नहीं कर सकता है? एसिडिक एंड बेसिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the H plus ion of the aqueous solution is a react with the वो किसके साथ react होता है? aqueous, and due to the formation of the what? hydronium ions. अभी देखो H plus है, H2O, it gives what? H3O plus. ये किन्होंने explain नहीं किया? Arrhenius theory ने explain नहीं किया है. According to this theory, H plus ion of the aqueous solution, they are react with the aqueous solution and due to the formation of the hydronium ion form होता है कि ये किन्होंने नहीं बताया है? Arrhenius theory ने नहीं बताया है. Next one is every ionic compound is a contain the ionic crystal. जितने आयनिक कंपाउंड है उस पूरे की पूरे आयनिक कंपाउंड every आयनिक कंपाउंड इज अ कंटेन द क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए NaCl ये आयनिक कंपाउंड और उसमें आयनिक क्रिस्टल है Na प्लस एंड व्हाट? Cl माइनस है. ये किन्होंने नहीं बताया? आर्हेनियस थ्योरी ने नहीं बताया है. दिस इज द डिफरेंट लिमिटेशन ऑफ द आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी. Which are the limitation of the Arrhenius acid base theory? एक क्लियर करो फिर से once again. This theory, acid and base is only explained in aqueous solution, does not explain in the substance themselves. It does not explain the acidic nature of the HCl and basic nature of the NH3 in non-aqueous media या gaseous state. It does not explain the acidic nature of the salt like AlCl3 and BaCl2 because in there does not contain the H plus, and a basic nature of the certain salt Na2CO3 and KCl because in there does not contain the OH minus.
According to this theory, H plus ion of the in aqueous solution, they are react with the water and due to the formation of the hydronium ion. ये किन्होंने नहीं बताया, आर्हेनियस थ्योरी ने नहीं बताया है. आणि एवढी आयनिक कंपाउंड इज अ कंटेन द क्या कंटेंट रहता है, आयनिक क्रिस्टल रहता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स. Lorry and Bronsted acid base theory. Lorry and Bronsted acid base theory in 1938. In 1938, J.N. Lorry, T.M. Lorry. In 1938, T.M. Lorry and J.N. Bronsted in 1923, not the 38, in 1923, T.M. Lorry and J.N. Bronsted proposed this theory is a based on the प्रोटॉन एक्सचेंज कंसेप्ट. ये थ्योरी किसके ऊपर बेस है, प्रोटॉन एक्सचेंज कंसेप्ट के ऊपर बेस है. कब स्टडी किए है ये 1923 में, किन्होंने, टीएम लॉरी एंड जेएन ब्रॉन्स्टेड. आणि दिस थ्योरी इज अ बेस ऑन द प्रोटॉन एक्सचेंज कंसेप्ट. देयरफॉर दे आर नोन एज हेंस दिस थ्योरी इज नोन एज, इसे क्या कहा जाता है, प्रोटॉनिक थ्योरी कहा जाता है. इसे क्यों प्रोटॉनिक थ्योरी कहा जाता है, बिकॉज दिस थ्योरी इज अ बेस ऑन द, किसके ऊपर बेस है, प्रोटॉन एक्सचेंज कंसेप्ट के ऊपर बेस है. देयरफॉर दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज, उसे कौन सी थ्योरी कहा जाती है, प्रोटॉनिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड एंड बेस इज डिफाइंड एज द first one is what is my acid, the substance which donate the proton to another substance. जो substance proton another substance को क्या करता है, डोनेट करता है, इस कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं. What is my acid, the substance which donate the proton to the another substance, इस कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं. For example, HCl. Another one is a NH4 plus H2CO3 H2SO4 HNO3. ये क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं. Another example, okay, this is a different example of the word acid. ये क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं. दी सबस्टेंस विच डोनेट दी प्रोटॉन टू दी अनदर सबस्टेंस आर कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज माय बेस, दी सबस्टेंस विच एक्सेप्ट दी प्रोटॉन, द सबस्टेंस विच एक्सेप्ट दी प्रोटॉन फ्रॉम दी अनदर सबस्टेंस, जो सबस्टेंस है प्रोटॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं. व्हाट इज माय बेस, द सबस्टेंस व्हिच एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द अनदर सबस्टेंस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, Cl माइनस, अनदर वन इज NH3, HSO4 माइनस, अनदर वन इज HS माइनस, नेक्स्ट वन इज NO3 माइनस. ये क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं. देयरफॉर दिस सबस्टेंस इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं. इन सिंपल, इन सिंगल वर्ड्स, जो प्रोटॉन डोनर है, दी प्रोटॉन डोनर्स, जो प्रोटॉन डोनर है, दी प्रोटॉन डोनर इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं.
जो प्रोटॉन डोनेट करता है, दे आर नोन एज, उसे एसिड कहते हैं इन सिंपल। आणि दी प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, द प्रोटॉन एक्सेप्टर इज नोन एज अ, प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एसिड एंड बेस इज ऑन द बेसिस ऑफ द लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। इसका एक कंबाइन एग्जांपल ले लेता हूं आपको, आपके अंडरस्टैंड के लिए। देखिए, कंसीडर, एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल HCl प्लस H2O, इट गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अभी इन दिस रिएक्शन, अभी ये HCl ने प्रोटॉन क्या किया, डोनेट किया है, प्रोटॉन को क्या किया, डोनेट किया है, प्रोटॉन को क्या किया, डोनेट द प्रोटॉन्स। Therefore दिस इज ये क्या है, एसिड है। अभी यहाँ पे H2O ने यहाँ पे प्रोटॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट द प्रोटॉन। Therefore वाटर इज द क्या है, बेस है। ओके, क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पे एसिड क्या है, HCl एसिड है, H2O क्या है, बेस है, क्योंकि H2 यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, H3O प्लस, बिकॉज दे आर एक्सेप्ट द प्रोटॉन, देयरफॉर वाटर इज अ बेस। और यहाँ पे HCl का कन्वर्जन किसमें होगा, Cl में, देयरफॉर दे आर दी, वो क्या है, एसिड है। अनदर वन इज एग्जांपल, इज अ सेकंड एग्जांपल लेंगे। देखो, NH3 प्लस व्हाट, HCl। ओके, यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, पहले HCl आणि NH3। नाउ लिसन केयरफुली। देखिए, अभी यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, NH4 प्लस प्लस व्हाट, Cl माइनस। यहाँ पे HCl ने प्रोटॉन दे दिया है, इसके वजह से प्रोटॉन इन्होंने डोनेट किया, डोनेट द प्रोटॉन, देयरफॉर HCl इज द, ये क्या है, एसिड है। और NH3 ने प्रोटॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट द प्रोटॉन, देयरफॉर NH3 इज द क्या है, बेस। ओके, अभी यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है दे आर दी, वो क्या रहता है, बेस रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। This concept is also related, is on the basis of the what, Lowry and Bronsted acid base theory. Okay, now give the heading, conjugated acid base pair. हेडिंग लगवा लीजिए पहले, कंजुगेटेड acid base pair. What is my conjugated acid base pair? आपको यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, किसे कहते हैं कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस फॉर्म from each other by mutual gain or loss of proton, each squad उसे क्या कहते हैं, conjugated acid base pair. What is my conjugated acid base pair? The pair of the, किसकी pair, एसिड एंड बेस की, द पेयर ऑफ द एसिड एंड बेस फॉर्म फ्रॉम ईच अदर बाय म्यूचुअल गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन, ईच स्क्वाड उसे क्या कहते हैं, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर कहते हैं।
ओके, फॉर एग्जाम्पल नाउ कंसीडर द रिएक्शन। अब एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे, HCl प्लस H2O, इट गिव्स H3O प्लस प्लस what Cl minus. Now listen carefully. In this reaction HCl is the, इस रिएक्शन में HCl ने क्या किया है, HCl is a donate the proton, फिर therefore HCl यहाँ पे क्या है, एसिड है, एंड H2O इज द, यहाँ पे H2O ने क्या किया है, प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट द प्रोटॉन, therefore H2O इज द क्या है, बेस है। ओके, नाउ फिर अभी देखिए, HCl is the conjugate acid, HCl is the conjugate acid, conjugate acid of the base Cl minus. HCl क्या है, conjugate acid, HCl is a conjugate acid of the base कौन, Cl minus, and देखिए, and H2O is the conjugate base, H2O क्या है, conjugate base of the acid hydronium ions, क्लियर होना चाहिए। HCl is the conjugate acid of the base Cl minus, and H2O is the conjugate base of the what, H3O acid, H3O प्लस। इन द रिवर्स, अभी उसको रिवर्स थिंकिंग कीजिए, इन द रिवर्स हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयन इज अ कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस H2O, H3O plus is the what, conjugate acid of the base H2O, and Cl minus is the conjugate base, Cl minus is the conjugate base of acid HCl। फिर यहाँ पे जो पेयर फॉर्म हो रही है एसिड बेस के बीच में, therefore that is that pair is known as a conjugated acid base pair कहते हैं। okay, we can say that every conjugated acid is the, every acid is the, we can say that every acid is the conjugate क्या रहता है, conjugate base रहता है, every acid is the conjugate base, and every base is the क्या रहता है, every base is the conjugate क्या रहता है, acid रहता है। ख्याल में रखिए, every acid is the conjugate base and every acid, every base is the क्या रहता है, conjugate acid रहता है। ओके, नाउ अभी अनदर एग्जांपल लेंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर के, क्योंकि एक कंसेप्ट आपकी क्या हो सकती है, क्लियर हो सकती है। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल इज second example is HSO4 minus plus H2O. Okay, now it gives H3O plus plus SO4 2 minus। अभी यहाँ पे क्या हो गया, SO4 ने प्रोटॉन क्या किया, डोनेट किया है, प्रोटॉन क्या किया, डोनेट, डोनेट द प्रोटॉन, डोनेट द प्रोटॉन, देयरफॉर HSO4 इज द, यहाँ पे HSO4 क्या है, एसिड है, और H2O ने क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट द प्रोटॉन,
ओके, देयरफॉर H2O इज द क्या है, बेस है। अभी इन्होंने क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के वजह से ये क्या हो गया, कंजुगेट क्या फॉर्म हो गया, कंजुगेट एसिड। और HSO4 ये क्या है, कंजुगेट क्या है, बेस है। फिर यहाँ पे कंजुगेट एसिड, ये कंजुगेट एसिड उन्होंने किसके साथ पेयर फॉर्म की, बेस के साथ। अभी यहाँ पे कंजुगेट बेस इन्होंने किसके साथ पेयर फॉर्म किए है, एसिड के साथ। देयरफॉर दैट इज दैट पेयर इज नोन एज, उसे कौन सी पेयर कहा जाता है, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर कहा जाता है। व्हाट इज माय कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर, द पेयर ऑफ द एसिड एंड बेस form each other by mutual gain or loss of proton is known as, उसे क्या कहते हैं, conjugated acid base pair कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अभी देखेंगे, दैट इज द Lewis एसिड बेस थ्योरी। जो पॉइंट आपको देखना है अभी, दैट इज लिविस एसिड बेस थ्योरी देखना है। इन 1938 J.N. लिविस, कब, इन 1938 में J.N. लिविस put forward this theory is a based on the, ये किसके ऊपर बेस है, इज अ बेस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस के ऊपर बेस है। देयरफॉर दिस थ्योरी इज नोन एज, उसे कौन सी थ्योरी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहा जाता है। कब, इन 1938 में J.N. लिविस पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी, and this theory is based on the electronic theory of valence. Therefore this theory is also known as, उसे कौन सी थ्योरी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द लिविस थ्योरी, एसिड एंड बेस इज डिफाइंड एज द, फर्स्ट वन इज व्हाट इज माय एसिड, द सबस्टेंस, जो सबस्टेंस रहता है, दी सबस्टेंस एक्सेप्ट द सबस्टेंस एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, जो सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दी सबस्टेंस इज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनदर सबस्टेंस इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। व्हाट इज माय एसिड, दी सबस्टेंस इज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनदर सबस्टेंस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, BF3 Ag प्लस Al3 प्लस BCl2 FeCl3 AlCl3 Cu2 प्लस, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या और जिसके ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, पूरे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पूरे के पूरे क्या है, एसिड है। कौन से एसिड, लिविस एसिड। बिकॉज इट्स बिकॉज द सब्सटेंस इज अ टेंडेंसी टू, इसकी क्या टेंडेंसी है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। देयरफॉर दे आर नोन एज, उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज माय बेस, द सब्सटेंस which donate the electron, जो substance कहता है, substance is a donate the lone pair of electrons, जो substance इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, is known as, उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। what is my base, the substance which donate the lone pair of electron to the another substance is known as, उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Cl minus OH minus Cn minus ROH, another one is a H2O,
जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जिसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देते हैं, डोनेट करते हैं। Therefore that substance is known as, उस सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। What is my acid and base is on the basis of the what, Lewis theory। Lewis theory के हिसाब से आपको एसिड यानी बेस किसे कहते हैं पता होना चाहिए। What is my acid and what is my base, जो सब्सटेंस प्रोटॉन क्या करता है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द अनदर सब्सटेंस इज नोन एज एसिड, and the substance which donate the lone pair of electron to the another substance is known as, उसे क्या कहते हैं, base कहते हैं। Okay, when the reaction is undergoes in between the acid and base due to the formation of the what, coordinate bond, जब लिविस एसिड एंड बेस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दी, वहां पे क्या फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। देखिए एक एग्जांपल देखेंगे फिर किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। दैट इज अ BF3, कंबाइंड एग्जांपल लेंगे BF3, BF। अभी BF3 एक ऐसा स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस, बिकॉज इन देयर इज उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दैट इज फिर ये क्या है, एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करता है, प्लस NH3। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, देता है। देयरफॉर NH3 इज द क्या है, बेस है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द, फिर यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, BF3, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी वजह से BF3 यानी NH3 के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो गया, दैट इज कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया है। क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया, बिकॉज इस बेस ने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किए हैं, और BF3 ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किए। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किए है। देयरफॉर जो एक्सेप्ट करता है वो बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, वो क्या करता है, वो क्या रहता है, बेस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एसिड और देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला वो क्या है, बेस है। ओके, दिस इज द लिविस एसिड बेस थ्योरी। ओके, गुड डे।